Good evening, everyone. I am Ariba Noman. I have secured rank 109 in UPSC CSC 2021 and I have been allocated Indian Police Service and my training will start from December. So I think yesterday also you had a session with Tehseen. She's also an IPS. We have decided that we will stay with you people for 7 to 8 days and we will try to convey whatever we did for prelims, mains and interview. So I'll again tell you that today I will take up prelims. Tomorrow it will be your mains. We will divide GS1, GS2, 3, 4. We will take a separate session for essay and some overall things that will be left. Okay? So this way we have thought to divide it. So these sessions will be very interactive. Feel free to any question, whatever areas of concerns that you have in mind, because it will be rare that we people will keep coming to you. Okay. So starting with my own background, I come from Sultanpur district of Uttar Pradesh, and I have completed my high school from Uttar Pradesh. For class 12, I came to New Delhi, and I graduated in computer science engineering from Delhi University. I have I am doing my master's in sociology because sociology is my optional subject. So I started my preparation in 2018. In 2017, I graduated and I started working with a startup based on artificial intelligence. I resigned and then I started full-fledged preparation in 2018. So briefly, I'll take you through my attempt. This was my fourth attempt. So I gave my first attempt in 2018. Okay, January I started preparing, and prelims was in June. I scored 89 marks, and the 98 was the cutoff. So I was lacking 9 marks. Correct. So I could not clear prelims basically. I realized that if in 6 months I could score this much, then if I am given just one more month, I can get through prelims. So that motivated me, and I gave next attempt. 2019. I cleared prelims. I gave mains and I scored around 720 and the cutoff was 750. Here I lagged 30 marks. So if you are acquainted with mains, you will realize that gaining 30 marks in mains is not a big deal. Because if you're scoring a half marks each in every question, then you are through. So 30 marks is not a big deal. If the difference was around 100, 150 something, then I would have realized that somewhere my foundation is not strong. But here I realized that I'm on the right track. So I decided to give another attempt. I gave my third attempt in 2020, and this time I could not clear prelims. And I could not clear prelims not because of GS but because of CSAT. And I am an engineer. So GS was done, CSAT I could not clear. I scored 65 and you have to get around 67. So what I am trying to tell you through CSAT is not about who you are, where you come from. You're an IIT Central University person or something. It's about mindset. I my own very close friend, he is a gold medalist from IIT Bombay, and this year he could not clear CSAT. And in very first attempt, he could reach interview, and this year he could not clear CSAT. So why I'm telling you is do not take this paper lightly. This paper is not about you are a humanities student or you are a engineer. It's about how well you tackle in those 2 hours. Because if you are given this paper, everybody will score very good. Questions are not difficult. These are set in a manner that if you get stuck in one set of questions, then you are losing. And if you keep moving through the questions, if you're not stuck at one question, you will be sailing through. Okay, so we will discuss this at some other day. Today we'll focus on GS. So this was a very, the lowest edge, the lowest phase of my whole preparation. Because here I had lost everything. CSAT ही नहीं clear हुआ. Now again gathering all courage, I gave in 2021 and today like I have scored 199, 109 rank. ठीक है? तो ये आपका मैंने इसलिए बताया कि
आप लोग आई थिंक अभी कॉलेज में हैं, राइट, मोस्ट ऑफ यू। सो ऐसे फेजेस आएंगे इस प्रेपरेशन में। एवरीबडी वांट्स टू गेट सिलेक्टेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई विल प्रे दैट यू गेट सिलेक्टेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बट द थिंग इज कभी कुछ चीजें हे वे हो जाती हैं, सो डोंट लूज होप। बिकॉज आपको इंसेंटिव्स मुझे दिखते थे हमेशा कि यहाँ पे सिर्फ 9 मार्क्स का गैप है, कवर हो सकता है, यहाँ 30 मार्क्स का गैप है, कवर हो सकता है। तो इससे मुझे दिखता था मैं ट्रैक मेरा सही है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं 30 नंबर लेके आ गई हूँ प्रीलिम्स में, तब वो इंडिकेट करता कि मेरा फाउंडेशन ही बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। ठीक है, so this was my whole journey of ups and downs. Now beginning with prelims. So before starting with prelims, I would want to make you understand that UPSC ऐसी body है which has very cleverly designed this whole exam. ठीक है, आपसे प्रीलिम्स में वो कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ मेंस में आपसे पूछना चाहते हैं, कुछ इंटरव्यू में, और वो क्वालिटीज जो एक ऑफिसर में चाहिए होती है वो इन स्टेजेस के थ्रू वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रीलिम्स का मकसद पता है ना कि व्हाई इज प्रीलिम्स टेकन, देन आई थिंक यू विल स्टडी बेटर। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम प्रीलिम्स इज prelims test your objectivity, how objective a person you are। आपको बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप कितना ऑब्जेक्टिवली उसमें से ले पाते हो, आपका माइंड कितना ऑब्जेक्टिवली एविडेंस बेस्ड फैक्ट बेस्ड है, दिस इज चेक। सेकेंडली, आपका विड्थ, कितना वाइड इंफॉर्मेशन है आपके पास, मतलब कितना वाइड सोच पाते हो आप। यहाँ से क्या होता है कि आपको इसमें सरफेशियल नॉलेज चाहिए होती है, डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं जानना है, थोड़ा विड्थ में आपको वो जानना चाहते हैं कि क्या आप इंक्विजिटिव हैं, आपके अंदर कोई एक चीज को देख के वो इंक्विजिटिवनेस, वो इंक्वायरी आती है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई नेशनल पार्क है, मान लीजिए न्यूज़पेपर में आया हुआ है जैसे चीता रिलोकेशन हो रहा है किसी नेशनल पार्क में, राइट, तो कुछ लोग होंगे जो बस ये जान के खुश हो जाएंगे कि हाँ हो रहा है, बट एज एन एस्पिरेंट योर माइंड शुड बी इग्नाइटेड इनफ कि आपको ये अंदर से इंक्वायरी आनी चाहिए कि वाई ओनली दिस नेशनल पार्क, व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस नेशनल पार्क, व्हाट काइंड ऑफ बायोम इज देयर, क्या कौन से ऐसे स्पीशीज हैं जो चीता के लिए हैबिटेबल होंगे, उसका प्रे बन पाएंगे, ऐसी कौन सी रिवर्स जाती है उस नेशनल पार्क से, उस नेशनल पार्क के अराउंड कौन सा है और ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज है। ठीक है, तो ये इंक्वायरी आपको लानी है अपने माइंड में, और वहां से आती है ये वाइड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। वन थिंग इज आप स्टक हो गए उसी एक चीज पे, अदर थिंग इज थोड़ा इंक्वायरी आई और आपने थोड़ा और जानने की कोशिश की। सेकेंड, थर्ड इज डेप्थ, तो वो आपके कुछ एरियाज का डेप्थ भी जानना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी में जैसे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, मॉनसून, हाँ, मॉनसून एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट है, क्या कॉज एंड इफेक्ट है अभी साइंटिस्ट को भी नहीं पता, तो हम बहुत सारी थ्योरीज देते हैं कि मॉनसून ऐसे आता है वैसे आता है। जेट स्ट्रीम्स सुना है आपने, जेट स्ट्रीम्स एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उसको समझने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो आपको एक नॉर्मल विंड सी लगेगी, पर उसके वजह से बहुत चीजें इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट में चेंज होती हैं। तो यहाँ आपको बहुत ही विड्थ डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स होंगे जहाँ पे डेप्थ चाहिए, कुछ टॉपिक्स होंगे जहाँ पे आपको सरफेशियल चाहिए पर आपका एक्सपैंड ज्यादा होना चाहिए। फोर्थ थिंग इज कॉमन सेंस, आपका कॉमन सेंस कितना काम करता है, आप कितने लॉजिकल और कितने रैशनल इंसान हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लो आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है, पीएम किसान स्कीम है, अवेयर, पीएम किसान स्कीम, तो आप ये स्कीम है, फार्मर्स को इनकम सप्लाई करते, इनकम सप्लीमेंट 6,000 रुपए सरकार देती है साल में, इन 3 इंस्टॉलमेंट्स 2,000 ईच। ठीक है, मान लो आप गए देने प्रीलिम्स, आपको नहीं पता ये फैक्ट, पर वहां पे एक ऑप्शन है कि गवर्नमेंट गिव 60,000 रुपीज पर ईयर। ठीक है, आपको नहीं पता था 6,000, तो आपका कॉमन सेंस क्या कहेगा कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री जहाँ पे इतने सारे फार्मर्स हैं, अगर गवर्नमेंट 60,000 हर फार्मर को देगी तो क्या होगा, उसका फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसी कोई स्कीम नहीं होगी जो इतने सारे फार्मर्स को 60,000 महीना साल का दे पाए। तो ऑब्वियसली दिस फैक्ट इज रॉन्ग। भले ही आपने नहीं पढ़ा पर आपका कॉमन सेंस आपको हेल्प करेगा कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। ठीक है, या कुछ चीजें हैं, साइंस एंड टेक में काफी बार क्वेश्चन आता है कि दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी कांट बी अप्लाइड ऑन दीज स्पीशीज,
या दिस टेक्नोलॉजी कांट बी अप्लाइड इन दिस एरिया। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसा पार्ट है जहाँ रिसर्च हमेशा होता रहता है। जो कल कांट था वो आज कैन हो सकता है, राइट। तो ऐसे जगहों पे आपका रडार दिमाग का खुलना चाहिए कि ऐसा नहीं है, रिसर्च कभी भी एग्जॉस्टिव नहीं हुआ है हमारे यहाँ, देयर इज ऑलवेज समथिंग लेफ्ट टू बी रिसर्च ऑन। तो ऐसा बहुत रेयर है कि कोई टेक्नोलॉजी वहां अप्लाई हो ही ना पाए पूरी तरह, या कोई ऐसी चीज जहाँ पे बोलते हैं ऑल, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसने बोला कि दिस ऑल ऑफ द इंडियन सिटीजन आर बेनिफिशियरी ऑफ दिस पॉलिसी। बहुत रेयर ऐसा होता है कि सबके लिए वो लागू हो। हमारी पॉलिसीज जनरली किसी सेक्टर को केटर करती हैं, राइट। अगेन आपका कॉमन सेंस यहाँ पे काम करना चाहिए, भले आपने उसको पता है या नहीं पता आपको वो एग्जैक्ट फैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन सेंस भी आपका चेक करता है। देन हाउ अवेयर यू आर, अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग। तो काफी बार ऐसा होगा कि आपने बचपन से आज तक जो भी चीजें कभी काउंटर की, कभी देखी सुनी कहीं से, वो यहाँ पे आपको मदद करेंगी। प्रीलिम्स जब आप करीब होगे, प्रीलिम्स के आप जब देखोगे, आई कैन गारंटी 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आपकी जो बचपन से कोई चीज आपने देखी वो आपको याद आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बार किसी ट्रिप पे गई थी, आई थिंक साउथ इंडिया। वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, एंड आई वाज अ चाइल्ड, आई नॉट चाइल्ड, 7th 8th क्लास में थी। और वहाँ पे ऐसा बोर्ड लगा था, वहाँ पे लिखा था स्थानकवासी जैन समथिंग। तो वो चीज प्रीलिम्स में मेरे काम आई, जो कि मैंने 7th क्लास में याद की, मतलब देखा था, बस काउंटर की थी। और वहां पे मैंने एलिमिनेट कर दिया कि उसमें था कि स्थानकवासी आर सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो वो मुझे एकदम से याद आ गया, वो बचपन की बात। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा अवेयरनेस दिखानी होती है, ओके, कि आप अपने सराउंडिंग से कितना अवेयर है। लाइक एक इंसान रोड पे आ रहा है जा रहा है, उसको पता ही नहीं अगल बगल क्या है, बट आप एक हैं कि आप अवेयर होके जा रहे हैं। कहीं बोर्ड होर्डिंग होती है, काफी बार होर्डिंग पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज लिखी होती हैं। ठीक है, वो बहुत सी चीजें हैं जो आपको थोड़ा अवेयर रहना है, एज एन ऑफिसर भी आपको अवेयर रहना है, राइट। तो वो क्वालिटीज यहाँ चेक होती हैं। तो आई थिंक प्रीलिम्स का मकसद इतना है। अब लेट्स डायरेक्टली गो थ्रू। आप लोग सोर्सेज से हैं, आपको सोर्सेज पता है ज्यादातर। स्टिल आई टेल यू माय ओन सोर्सेज। अगेन दीज सोर्सेज आर माय सोर्सेज, आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। और आपको आई थिंक कोचिंग वाले प्रोवाइड करते होंगे बुक, तो उसमें ये सारा मोर और लेस कवर्ड है, तो यू कैन रिलाई ऑन दैट सोर्स। सो आर्ट एंड कल्चर के लिए आई यूज्ड फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी। आर यू गाइस अवेयर ऑफ दिस बुक? ठीक है, फिर एंशियंट के लिए आर एस शर्मा सर की एनसीईआरटी, ये भी आपके मटेरियल में है कवर्ड। मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा सर एनसीईआरटी। मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा, मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी है वो। ठीक है, और बाकी जो बुक्स होती हैं लाइक स्पेक्ट्रम, प्लासी टू पार्टीशन एक्सेट्रा, वो आई थिंक आपके मटेरियल में है। इस बुक से क्या होता है कि आपको एक फिलोसफिकल नॉलेज आती है, मतलब एक स्टोरी की तरह आपको फ्रीडम स्ट्रगल समझ आएगा, तो वो मेंस में बहुत हेल्प करेगा आपका। ओके, देन कम्स ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आई स्टडीड ओनली एनसीईआरटी 11th 12th की, दो दो हैं यहाँ पे। एंड अदर देन दिस आई हैड आल्सो रेफर टू राज तनिल मैम वीडियो। आर यू अवेयर ऑफ मृणाल सर चैनल? तो इनके यूट्यूब चैनल पे ये मैम है, राजतनिल मैम, शी इज एन आईआरएस, ये पढ़ाती हैं ज्योग्राफी। तो अगेन कंपल्सरी नहीं है यहाँ पे कुछ भी, जस्ट बिकॉज मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी ज्यादा ज्योग्राफी में, कुछ क्लैरिटी, तो मैंने जो चीजें मुझे नहीं आ रही थी वो मैंने इनके वीडियो से रेफर करा था फॉर क्लैरिटी पर्पज। ठीक है, ये हो गया। देन कम्स योर पॉलिटी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर। एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या आप अपने साथ एक बेयर एक्ट रख सकते हैं। ओके, so if I'm saying that I had referred Lakshmikant, I had only referred Lakshmikant, nothing like डीडी बसु भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, nothing nothing। ये बुक जो मैंने बोली सिर्फ यही बुक। देन कम्स इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए आई रेफर्ड
क्लास 12th की मैक्रो एनसीईआरटी प्लस मृणाल सर के वीडियोस, अगेन फॉर ओनली अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। देन कम्स योर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए आई रेफर्ड ओनली शंकर आईएएस बुक। साइंस एंड टेक, करेंट अफेयर, और जो थोड़े स्टैटिक पार्ट होते हैं लाइक व्हाट इज वायरस, व्हाट इज बैक्टीरिया, इम्यून सिस्टम, डिजीजेस, ये चीजें आप किसी भी कोचिंग का जो यहाँ का मटेरियल है आप उससे कर लीजिए, स्टैटिक पार्ट जो है, ठीक है। स्टैटिक आप कोई कोचिंग का मटेरियल से कर लो। ये मोर और लेस दिस इज अप्लाइड टेक्नोलॉजी का, साइंस का एप्लीकेशन, तो करंट अफेयर में कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये तो थे सोर्सेस, और यू कैन सी देयर वर वेरी लेस बुक्स दैट आई रेफर्ड, 1 2 3 4 5 6, लाइक जस्ट दीज बुक्स। तो जो बिल्कुल ही मिथ क्रिएटेड है ना कि बहुत सारा पढ़ना होता है और बुक शेल्फ भर जानी चाहिए, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्हीं बुक्स को वापस से पढ़ते रहो, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई एकेडमिशियन नहीं बनना है, किसी तरह का पीएचडी नहीं करना है, आपको कोई फिलोसोफर नहीं बनना है, आपको कोई एक्टिविस्ट नहीं बनना है, लॉयर कुछ नहीं बनना है। एग्जाम क्लियर करना है और जाना है, राइट। तो योर गोल शुड बी वेरी मच क्लियर फ्रॉम डे वन कि आपको कितने डेप्थ में जाना है ये आपको पता होना चाहिए। एंड ये डेप्थ कैसे पता चलेगी, दिस आई विल टेल यू। सो दीज सोर्सेज आर क्लियर। एनी क्वेश्चन? कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री, ओके। देन कम्स हाउ डू वी स्टडी, लाइक हर किसी के पास ये सोर्सेज हैं, राइट। हर किसी के पास कोचिंग का एक्सेस है, देन व्हाई इज इट दैट सक्सेस रेशियो इज सो लेस? so it is the way you study, so let's focus on that as well. अब आपने पहला स्टेप, आई थिंक ये जनरली पूरे इस एग्जाम में अप्लाई होता है। फर्स्ट स्टेप शुड बी टू नो योर सिलेबस, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, सिलेबस पता नहीं है, बुक सारी आ गई है, तो क्या पढ़ोगे उसमें, राइट। सिलेबस को जानो। अब प्रीलिम्स में सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं है, पूरा बस बता दिया है, मॉडर्न है, एंशियंट है, इकोनॉमी आएगा। पर मेंस में उन्होंने अच्छे से डिलिनेट किया है, लाइक सब पार्ट्स भी बताए हैं। पर प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है। तो आपको प्रीलिम्स में अब कैसे गाइड करेगा आपको, दैट सेकेंड स्टेप कम्स इन, दैट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs। दीज आर द गाइडिंग सोर्स जो आपको बताएंगे कि रुकना कहाँ है। अब आपने कोई फंडामेंटल राइट आपने पढ़ा मान लो लक्ष्मीकांत में, तो एक लॉयर फंडामेंटल राइट को अलग तरह से पढ़ेगा, आप फंडामेंटल राइट को अलग तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि फंडामेंटल राइट में किस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर सरफेशियल क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आप वही करेंगे प्रिपेयर, कितने डेप्थ में आए हैं आप उसी तरह से प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे मुझे रुकना है, अदरवाइज इट्स एन ओशन, कीप डाइविंग। हर सब्जेक्ट के लिए आपको इसीलिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर को जानना है। अब आपने मान लो आप सब बिगिनर हो, आपने उठाई लक्ष्मीकांत, यू डोंट नो अबाउट सुप्रीम कोर्ट या आपको पार्लियामेंट का कुछ नहीं पता, बट स्टिल यू विल रेफर टू दैट प्रीवियस ईयर। आप देखो कि पार्लियामेंट से आज क्या क्या क्वेश्चन आया है आज तक, आप वहां सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको सॉल्व नहीं करना है अभी क्योंकि यू डोंट नो पार्लियामेंट। नाउ व्हेन यू रीड पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल स्ट्राइक, हाँ यार ये क्वेश्चन आया था, इस टॉपिक का ये क्वेश्चन इस साल आया था। अब आपका फोकस बढ़ जाएगा उस टॉपिक पे। इस तरह से आपने पढ़ लिया। मान लो थर्ड स्टेप क्या किया कि आपने फर्स्ट रीडिंग की किसी सब्जेक्ट की। टेक फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी में पार्लियामेंट पढ़ा, ओके। अब आपने PYQ की बात पढ़ा है तो आपको पता है कि मुझे इतने डेप्थ में ये टॉपिक पढ़ना है। अब आपने एक चीज है कि आपने ये पढ़ा, ठीक है। अब आप मान लो इसके बाद आप पढ़ते हो सुप्रीम कोर्ट, तो मैं इसी के साथ आपको ना रिवीजन भी बताऊंगी कि मैं रिवीजन कैसे करा करती थी। आपने पार्लियामेंट कंप्लीट कर लिया, प्रीवियस ईयर अब आप वापस से देखोगे इसका, और अब आपको मोर और लेस सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो आप वापस से पार्लियामेंट का चैप्टर खोलिए
वापस से पढ़िए अगेन, फिर देखिए, फिर वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं आपसे, तो मतलब फिर वो सबसे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि पॉलिटी का क्वेश्चन आपका लक्ष्मीकांत से नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको रिपीटेडली प्रीवियस ईयर को रेफर करते रहना है। ओके, देन मान लो आपका पार्लियामेंट हो गया, अब आप गए सुप्रीम कोर्ट पे, तो ये नया चैप्टर है। तो क्या आप पार्लियामेंट को आप नेक्स्ट मंथ पढ़ोगे? कभी नहीं। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर आई वुड गिव 5 मिनट्स टू द प्रीवियस चैप्टर डेली। मान लो आज आपने सुप्रीम कोर्ट शुरू किया, तो अब आप 5 मिनट में, आपका 10 मिनट जितना भी लगे, आधा घंटा लगा लो, पार्लियामेंट बड़ा चैप्टर है, तो आधे घंटे में या 20 मिनट में आपका वो पार्लियामेंट एक बार आपको बस गो थ्रू करना है, नजर मारनी है उस चैप्टर पे लक्ष्मीकांत के। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में वो लॉन्ग टर्म स्टोर रहेगा। आपको मन नहीं करेगा कि वापस से पार्लियामेंट पढ़े, क्योंकि आपका दिमाग बोलेगा कल ही तो पढ़ा था, लेट्स स्टार्ट विद न्यू चैप्टर। बट दिस इज अ ट्रैप। इस एग्जाम में रिवीजन ही सबसे बड़ा ट्रैप है, जो नहीं करेगा वो कभी नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये करती थी कि हमेशा नया पढ़ने से पहले प्रीवियस आई यूज टू रिवाइज। ठीक है, इस तरह करते करते आपके आपका पूरा पॉलिटी यहाँ पे खत्म। करेक्ट। और पॉलिटी इफ आई टेक फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 महीना लग जाएगा लक्ष्मीकांत को। 1 महीना इज सफिशिएंट इफ यू स्टडिंग प्रॉपरली। आप लॉयर नहीं बनने चले हो, तो आपको 1 महीने में लक्ष्मीकांत इज ओवर। नाउ यू टेक अप फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी। मान लो आपने इकोनॉमी उठाया, तो क्या अब आप पॉलिटी को छोड़ देंगे? नहीं। आई नेवर यूज टू डू दैट। अगर इकोनॉमी मेरी एज अ मेजर सब्जेक्ट चल रहा है, जिसको मैं 4-5 घंटे दे रही हूँ, देन पॉलिटी को मैं रिविजन मोड पे डाल दूंगी, और उसको मैं हर दिन 30 मिनट रिवाइज करूंगी। तो जब तक आपका इकोनॉमी मेजर चलता रहेगा, आपका पॉलिटी एक बार वापस से रिवाइज हो चुका होगा, विदाउट गिविंग एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, तो मुझे कभी भी रिवीजन क्राइसिस नहीं हुआ। मुझे कभी ऐसा अलग से टाइम नहीं देना पड़ा कि आज इसका रिवीजन है या इस महीने पूरा रिवीजन है, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मैं हर दिन रिवाइज कर, नया चैप्टर शुरू करने से पहले मैं उसको देख रही हूँ। यहाँ मैं नया सब्जेक्ट शुरू करने से पहले पुराना सब्जेक्ट रिवाइज करती चल रही हूँ। तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू रिविजन। अब एक और चीज है कि आप जब किसी सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, फर्स्ट रीडिंग जब होती है, देन मेक श्योर कि वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग है। ठीक है, जैसे आप शंकर आईएएस की बुक उठाइए, आपने उसमें कोई चैप्टर खोला और आपको कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो उसी टाइम पे गूगल करो और वहीं पे लिख लो। डोंट स्किप इट। पहले हमें लगता है कि अरे चल जाएगा काम, छोड़ो, पर वही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में एकदम। ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग शुड बी वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। आप हर चीज को वहां पे गूगल करो, थोड़ा रिसर्च कर लो। और रिसर्च ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक दिन पूरा लगा दिया आपने। गिव 10 to 5 मिनट, डन। यहाँ पे लिख लीजिए, सो दैट आप जब सेकेंड रीडिंग कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ऑब्स्टिकल नहीं बनेगा। आप बस इसको पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। यहाँ पे कुछ आपने लिखा था, पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है, इस तरह से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आप करते चलेंगे। डोंट लीव एनीथिंग फॉर लेटर स्टेजेस बेसिकली। ठीक, एनी क्वेश्चन? नथिंग? देन नाउ कम्स कि ये हमने रिवीजन देख लिया, हमने देख लिया पढ़ते हम कैसे हैं। स्टार्टिंग में आपने सिलेबस देखा, आपने प्रीवियस ईयर देखा, आपने पढ़ा, वापस से प्रीवियस ईयर देखा, कंप्लीट। अब नए चैप्टर पढ़ने से पहले पुराना चैप्टर देख लिया, नए सब्जेक्ट से पहले पुराना सब्जेक्ट देख लिया, दैट्स ऑल। ठीक है, इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल अपीयर इन 2024। 23? ओके, 23। तो आपको मैं कैसे टाइमलाइन बनाती थी, लेट्स टॉक अबाउट टाइमलाइन ऑल्सो। मान लो आपका 23 में एग्जाम है, करेक्ट? मई में है ना एग्जाम? तो अब आपको सोचो कि आप मई में अगर आपका एग्जाम है, तो आप क्या कर रहे होगे उस टाइम पे? अप्रैल में क्या कर रहे होगे? अगर आपको मेंस में मई में एग्जाम देना है, तो ऑब्वियसली आप रिवीजन कर रहे होंगे, कुछ नया नहीं पढ़ रहे होंगे। तो मैं हमेशा बैकवर्ड देखती थी कि अगर मई किस दिन है, 28 को है, तो ये जो 28 डेज है यहाँ पे, 27 डेज, ये तो मेरा पूरा रिवीजन चल रहा होगा। अप्रैल के मिड में, मान लो 15 अप्रैल तक, जितना भी नया वया पढ़ना था सब खत्म हो चुका होगा मेरा।
करेक्ट। इससे पहले लेट्स कम टू जनवरी। जनवरी में मेरा ये टारगेट रहेगा कि मेरी फर्स्ट रीडिंग सबकी कंप्लीट हो चुकी हो, हर सब्जेक्ट की मैं एटलीस्ट फर्स्ट रीडिंग कर लिया हूँ मैंने। फिर जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, यहाँ पे मेरी सेकेंड थर्ड रीडिंग हो जाए सब्जेक्ट की। तो जब जैसे मैंने आपको रिवीजन का तरीका बताया, तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती थी रिवीजन में, क्योंकि मैंने इतनी बार रिवाइज किया होता था यहाँ पे। हर सब्जेक्ट के पहले मैं कर रही थी, हर चैप्टर के पहले मैं रिवाइज कर रही थी, तो मुझे इतना लोड नहीं हुआ। बट आप अपने हिसाब से देखो कि आपको जनवरी तक फर्स्ट रीडिंग मार लेनी है, और जो ये टाइम बचता है अप्रैल तक का, उसमें आपको 3 4 5 जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं आप करिए। ठीक है, एग्जाम के पहले एटलीस्ट 4 रिविजन शुड बी डन। मतलब पर्सनल एडवाइस कि तभी रिकॉल हो पाएगा। ओके, मतलब आपका एक ऐसा टाइम आना चाहिए रिवीजन का कि आप एक पेज लेके खड़े हैं, तो आपको ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको ऐसे 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 पढ़ना है, वर्टिकल पढ़ना है एकदम। इस तरह से आपके दिमाग में वो चीज ठूसी होनी चाहिए कि आपने बस वो खोला और एकदम क्लियर हो गया, आपको आपने पेज पलटा एकदम क्लियर हो गया। ऐसे ऐसे आपको नहीं पढ़ना है, वो लेवल ऑफ रिविजन आपको लाना है टुवर्ड्स द एंड। ओके, एंड दैट विल कम व्हेन यू आर डेली रिवाइजिंग। एंड ट्रस्ट मी, इस एग्जाम में जहाँ पे जो चीज आपको सबसे बुरी लगती करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट बुरी चीज इज रिविजन, सेकेंड बुरी चीज इज आंसर राइटिंग। हाँ, बिकॉज हमारा इनर्शिया कभी ब्रेक ही नहीं होता आंसर राइटिंग करने के लिए। बट दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन इन दिस एग्जाम व्हेन यू आर थिंकिंग कि ये चीज बुरी लग रही है, तो दैट इज फॉर श्योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन मोर थिंग, कुछ पार्ट है जो बहुत ही बोरिंग है, वो आपको पढ़ने का मन नहीं होगा, राइट? जैसे ज्योग्राफी में वो है ना, प्राइमरी रॉक्स, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, उसकी साइकिल। तो वो मुझे ऐसा लगता था मैं ये क्यों जानूं। बट इस बार के मेंस में दैट केम एज अ क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी रॉक। तो जिसने हमेशा उसको इग्नोर किया होगा वो तो उसके लिए शॉक था। तो इस एग्जाम में हमेशा आपको ना इंटरेस्ट नहीं आता रहेगा, ऐसा मत सोचो। 100 टाइम्स में से आपको 30 40 टाइम्स कुछ चीजें बहुत मंडेन लगेंगी कि मतलब क्यों पढ़ना है ये चीज, पर यू हैव टू डू दैट बिकॉज द एग्जाम डिमांड। यहाँ पे आपके हिसाब से नहीं चलेगा, उसके हिसाब से चलेगा। क्योंकि ऑफिसर में कुछ आपको, जब आप ऑफिसर बनेंगे तो कुछ चीजें होंगी जो रोजमर्रा आपको करना ही है, मंडेन काम करना ही है। तो ये यूपीएससी चेक्स हियर इटसेल्फ कि आर यू केपेबल ऑफ दिस और नॉट। दैट्स व्हाई द सिलेबस इज डिजाइन लाइक दिस, एग्जाम क्वेश्चंस आर डिजाइन लाइक दिस। ठीक है, तो वो आपकी, व्हाट आई बिलीव इज, यूपीएससी डजंट चेक यू इन प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, इट चेक्स यू एवरी डे। द मोमेंट यू एंटर दिस एग्जाम, वहीं से आपका ये एग्जाम शुरू हो जाता है। आपका हर दिन आप किस हिसाब से अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कितना आपके अंदर वो आग है। सुबह उठते ही आपको ये एग्जाम याद आता है कि नहीं, रात को सोते आपको ये एग्जाम याद आता है या नहीं। दिस शोज हाउ क्लोज और हाउ फार यू आर फ्रॉम द एग्जाम। ओके, तो दिस इज द थिंग। रिविजन हो गया, मैं कहाँ थी? हाँ, रिविजन एंड आंसर राइटिंग। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस कि आप मान लो आप प्रीलिम्स को अब आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर, तो वो हम कैसे करें। आप प्लीज इसके पहले कोई डाउट है तो प्लीज पूछ ले, कोई किसी को किसी चीज में प्रॉब्लम आई हो जी। करेक्ट। ओके। हम्म। लाइक पॉलिटी आपने एक बार कवर किया है? हाँ। हिस्ट्री में एंशियंट या विच वन? एंशियंट। तो अगेन देखो, एंशियंट में जब आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं एंशियंट का, तो उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, इकोनॉमी, सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ सब कुछ करना है। पर जब आप मेंस कर रहे हैं तो उसके सिलेबस में 3 चीजें लिखी हुई हैं, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर। दैट्स ऑल। पूरा सिलेबस में सिर्फ 3 चीजें पूछता है, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर। अगर आप मेंस के लिए लैंड रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो ये आपकी गलती है। उसने साफ बोला है कि उसे 3 चीजें चाहिए, बट प्रीलिम्स में उसको सब चाहिए। तो जैसे आपको टाइम लग रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन प्लीज रेफर टू प्रीवियस ईयर। क्योंकि क्या पता आप उन चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो चीजें कभी आई ही नहीं है, या जिसका चांस बहुत ही कम है। ठीक है, तो मैं हमेशा क्या करती थी कि प्रीवियस ईयर से मुझे समझ आता था कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्ति, सूफी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चोला, और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, तो इन पे मेरा फोकस बहुत होता था। पर कुछ चीजें जो कभी बहुत ही रेयर आई हैं, उनको मैं बस करके आगे बढ़ जाती थी। तो आपको यार, अगर आप डेली बेसिस पे दे रहे हो 8 घंटा जितना भी, तो
और कंसिस्टेंटली आप पढ़ रहे हैं, तो एक महीना इज वेरी मच सफिशिएंट फॉर एनी सब्जेक्ट। स्पीड बढ़ाइए, आप रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ाइए, एंड आई थिंक रिविजन प्रीवियस ईयर विल, कि आप रिवाइज नहीं कर रहे हो सही से, या आप प्रीवियस ईयर नहीं कर रहे हो सही से, यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन यूजलेस थिंग्स। ठीक है, तो इसको आप वर्क ऑन करो, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। क्वालिटी इतनी बड़ी बुक, ट्रस्ट मी, वो एक महीने में हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है क्वालिटी को लेके कि जब आपका प्रीलिम्स है मान लो 2 दिन बाद, तो आपको 6 घंटे में वो क्वालिटी हो जाएगी आपसे। लक्ष्मीकांत आप 6 घंटे में पढ़ लेंगे। अभी ये थोड़ा बिजार लग रहा होगा, पर ये होता है क्योंकि आपने इतनी बार रिवाइज किया होता है कि आप बस उस पेज को देखते हैं और सब आता है, पीछे पलटते हो सब आ जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में होगा, एक महीना लगेगा, बट सब्सिक्वेंटली आपको वो 20 दिन में हो जाएगी, फिर 15 दिन में, 10 दिन में, एक हफ्ता करते करते वो हो जाएगा। ओके, सो हाउ, एनी अदर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम जैसे आपने बोला कि मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जानी चाहिए, तो जैसे फर्स्ट रीडिंग के बाद ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब नोट की स्टेज क्या आनी चाहिए अगर हम नोट्स बनाना चाहते हैं, तो वो किस स्टेज पे बनने चाहिए? जैसे फर्स्ट रीडिंग तक तो हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही होती है, तो किस स्टेज पे नोट्स बनाने चाहिए और फिर आगे रिवीजन मतलब उस नोट्स पे करना ताकि वो कंसाइज भी और जल्दी हो जाए, तो किस स्टेज सॉरी, पे? आपका नोट मेकिंग समझा, सेकंड क्वेश्चन आपने क्या बोला आगे? कि मल्टीपल रिवीजन के लिए अगर बार बार बुक रेफर कर रहे हैं तो आई थिंक वो ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा, तो नोट्स हो तो वो रिवीजन जल्दी हो जाएगी, तो इसलिए नोट्स। Yeah, I got your question. See, for prelims, I never made notes as such, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा पिक्टोग्राफिक मेमोरी ज्यादा अच्छा है। ये आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आपको कोई नेशनल पार्क है या कोई रिवर है, वो देख के याद रहती है या लिख लिख के याद होगा। आपको कोई मान लो ज्योग्राफी का कोई पार्ट है, वो आपको साइक्लोन वहां देख के याद रहेगा, उस बुक में यहाँ ये लिखा है, ऐसे याद रहेगा या लिख के याद रहेगा। तो मेरे लिए पिक्टोग्राफिक मेमोरी वाज मोर बेनिफिशियल। ठीक है, तो ये आप अपना देखो पहली बात तो, इससे आपको समझ आएगा कि नोट्स किस चीज की बनानी है, किस चीज की नहीं। मैंने किस चीज की नोट्स बनाई थी, अगर आप पॉलिटी उठाते हो, अब अगर आप पार्लियामेंट चैप्टर की नोट्स बनाने बैठेंगे तो वो फिर से वही बन जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट चैप्टर या सुप्रीम कोर्ट जो चैप्टर है, एक एक लाइन उसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर लाइन में कुछ कुछ है। बट अगर आप मान लो एक कमिटीज वाला चैप्टर है ना, या जो बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, वो वाला चैप्टर है, यहाँ आप नोट्स बना सकते हैं। कमिटी में आप टेबल डाल सकते हो कि इतना मेंबर, इतना ये वाला चेयरमैन, इतने लोकसभा में, इतने राज्यसभा में, और इतना इतना इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये आपने बना लिया, एक पेज में आ गया। इसी तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का नोट्स बना सकते हैं, कौन अपॉइंट करता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या मैंडेट है, क्या पावर्स है, करके खत्म। तो यहाँ पे चलेगा। बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी, लाइक अगेन पार्लियामेंट या इमरजेंसी प्रोविजन, जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्यादा क्लियर है। सो नोट मेकिंग आप वही करिए जहां आपको लग रहा है कि यह आपका काम कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। पता लगा आपने पार्लियामेंट को नोट्स में डालने की कोशिश की, एक तो वो खुद में नोट्स बन गया और दूसरा उसका एसेंस ही चला गया, है ना। या हिस्ट्री है जैसे मान लो, तो हिस्ट्री को आपने बस एक बार पढ़ा, बिपिन चंद्रा, आपने उसकी नोट्स बना ली। अब आपने इतने बड़े चैप्टर को इतने से में कर दिया, तो उसका एसेंस चला जाता है। अब आप वापस से उसको साइनॉप्सिस में लाओगे, इतना सा हो गया, उसका एसेंस और चला गया। तो until you are thorough with the whole concept, which will come I guess in 2 readings, 2 to 3 readings, उसके बाद ही नोट्स बनाइए। ठीक है, सो योर क्वेरी, आप नोट्स आई गेस 2 to 3 रीडिंग्स के बाद ही बनाओ, और उन्हीं चीज का नोट्स बनाओ जो आपका काम आसान कर रहा है, कि आपको रिवीजन क्विकली हो जाएगा। ओके। यस मैम, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम जैसे कि आपने बताया कि लाइक जैसे आप रिवाइज करते थे एक सब्जेक्ट को, तो दूसरे सब्जेक्ट के साथ ही आप उनकी रिवीजन स्टार्ट करते थे मैम। तो जैसे अगर आप थर्ड सब्जेक्ट को पिकअप कर रहे हैं, तो आप मतलब बाकी 2 सब्जेक्ट फिर आप साथ में उन्हें रिवाइज करेंगे, या फिर फर्स्ट वाले को लाइक लीव आउट करके फिर सेकंड लाइक स्टार्ट उनकी उसकी रिवीजन? हाँ, तो मान लो मैंने शुरू किया ज्योग्राफी, नाउ आई हैव कम टू पॉलिटी। तो पॉलिटी मेरा चल रहा है मेन सब्जेक्ट, रिवीजन का चल रहा है ज्योग्राफी।
अब मैंने पॉलिटी के बाद उठाया इकोनॉमी। इकोनॉमी जब चल रहा है तो मैंने मेरा रिवीजन मोड पे है पॉलिटी। एंड ट्रस्ट ऑन योर ब्रेन कि अब ये ज्योग्राफी को याद रखेगा, ठीक है। अब आप पॉलिटी ही रिवाइज कर रहे हैं। इकोनॉमी के बाद आपने क्या शुरू किया, मान लो इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जब मेरे 3 सब्जेक्ट हो जाते थे या 4 सब्जेक्ट हो जाते थे, तो फिर मैं 1 हफ्ता लेके इन तीनों चारों को रिवाइज कर देती थी, ठीक है। वरना फिर इसमें ज्यादा गैप आ जाएगा। मान लो आपने इन्वायरमेंट शुरू कर दिया और आपका रिवीजन मोड पे ये है, तो इसको पढ़े हुए तो बहुत टाइम हो गया है ना। कोई भी सब्जेक्ट आपका 1 महीने से ज्यादा छूटे ना, ये है बेसिक फंडा। तो जब मेरे मान लो 3 सब्जेक्ट हो गए हैं, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे पॉज लूंगी और मैं 15 दिन लूंगी और इन तीनों को रिवाइज कर दूंगी। फिर मेरी साइकिल शुरू होगी फॉर नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट, ठीक है। ओके मैम। ओके, एनी अदर डाउट? हाँ, हाँ। ओके, वैसे अभी मैं आंसर राइटिंग का तो सेशन कल है हमारा मेंस का, बट ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ। आपकी क्लास 5:30 ओवर होती है, राइट? ठीक है, तो आपको ब्रीफली मैं बताती हूँ। देखो, आंसर राइटिंग ना, हर चीज का यार थोड़ा लॉजिक लगाओ, ठीक है। आपने ये एग्जाम इतना इंटरकनेक्टेड है कि इन्वायरमेंट का काम पॉलिटी में आ रहा है, पॉलिटी का काम ज्योग्राफी में आ रहा है, कुछ भी कहीं से भी चल रहा है। तो अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा है, मान लीजिए पार्लियामेंट सिर्फ पढ़ा हुआ है, अब उस पर क्वेश्चन आ गया कि पार्लियामेंट का डिग्रेड हो रहा है रोल, बट आपने बाकी चीजें कुछ पढ़ा नहीं है, तो आप जो चैप्टर जो एग्जाम आप लिखेंगे, आंसर आप जो लिखेंगे, वो सिर्फ उतना ही पार्ट रहेगा। वो ज्यादा डाइवर्स नहीं हो पाएगा। तो व्हाट आई रिकमेंड इज, एक बार आप सब्जेक्ट कर लीजिए अच्छे से और फिर आंसर राइटिंग करो। जो ये है ना, ठीक है, डेली आंसर राइटिंग कुछ लोग फॉलो करते हैं, बट डेली आंसर राइटिंग में क्या है कि आपका एटलीस्ट हो चुका होना चाहिए। कुछ हद तक आपका सब्जेक्ट, कुछ हद तक आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, ताकि आपको थोड़ा इंटरलिंकिंग आए। अदरवाइज आप रॉ लेके बैठ गए हैं तो आप डिमोटिवेटेड रहेंगे कि लिखें क्या, और उस एक्सरसाइज का कोई फायदा है नहीं ज्यादा, ठीक है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको क्वेश्चन है, अब हम अटेम्प्ट करना बताते हैं कि अटेम्प्ट कैसे होगा। 100 क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। अब आपको 30-40 क्वेश्चन ऐसे हैं यूपीएससी ने जो बनाए हैं, जो कि काफी स्टैटिक है और इजिली डुएबल है, ठीक है। इस पे अगर आपने ये पूरा बुक का एकदम घोल के पी लिया है, तो आपको ये आसानी से हो जाएंगे आपके। बुक्स आपने एकदम घोल ली हैं और आपके करंट अफेयर, आप हिंदू जो भी न्यूज़पेपर है आपका, मैंने हिंदू पढ़ा था, आपने उसको अच्छे से फॉलो किया है, तो ये आराम से होगा। नेक्स्ट कम्स योर नेक्स्ट 30-40 क्वेश्चन। ये है गेम चेंजर एकदम। यहाँ पे आपके आते हैं, यहाँ पे ऐसा होगा कि आपको कुछ 2 आ रहे होंगे कहीं पे, एक भी 2 एलिमिनेट हो गए, 3 एलिमिनेट हो गए, ऐसे करके यहाँ पे एलिमिनेशन काम आता है। एलिमिनेशन कैसे आएगा कि अगेन कॉमन सेंस, योर जनरल नॉलेज अबाउट थिंग्स, योर ऑन स्पॉट डिसीजन, या आपने कभी कहीं कोई सब्जेक्ट में कोई चीज सुनी थी, कभी आपका ऑप्शनल भी काम आ जाता है यहाँ पे काफी बार। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोशियोलॉजी में व्हेन वी स्टडी जेंडर इश्यूज, तो हम पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स विमेन को नहीं है, राइट। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है मिताक्षर एंड दयाभाग, दयाभाग सिस्टम एंड मिताक्षर सिस्टम ऑफ inheritance in Hindu families. That came as a prelims question. So that I had studied in sociology, my optional. तो यही है कि कुछ भी आपको मदद कर सकता है यहाँ पे। आपका ऑप्शनल मदद करेगा, आपने कभी कहीं चलते हुए कुछ देखा, आपको इंटरकनेक्ट करके बेसिकली यहाँ पे एलिमिनेशन से आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। फिर आपके कुछ बचते हैं 20 to 15 क्वेश्चन, और यहाँ पे कुछ अलग और क्वेश्चन बचे, तो ये तो पूरा रिस्क है। यहाँ तो आपको पूरा तुक्का ही आप मारोगे, अगर आप मारोगे तो, ठीक है। तो ये बहुत ही हाई रिस्क क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन वो हैं, ये तभी आप करेंगे जब आपको पता है कि नहीं होने वाला। अगर नहीं होने वाला तो एक बार कर ही लो, क्या पता हो जाए। हाँ, और अगर यहाँ पे मान लो आपको लग रहा है हो रहा है, तो ये करके रिस्क नहीं लो, ठीक है। और ये चीजें आपको कैसे आएंगी, जब आप टेस्ट पेपर्स लगाते रहोगे। टेस्ट पेपर लगाइए, आपको शायद कोचिंग से मिलते होंगे, या आप प्रीवियस ईयर के पूरे पूरे प्रिंट आउट निकाल लो, एक बुक मंगा लो प्रीवियस ईयर की, उसको लगाइए आप लोग, ठीक है।
उससे आपको समझ आएगा कि कहाँ रिस्क लेना है, कहाँ नहीं लेना है। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो बिल्कुल वन लाइनर हैं, तो वहां पे आपको कोई हिंट नहीं दे रहा है यूपीएससी कि एलिमिनेट करो, कोई हिंट नहीं। मान लो पेंटिंग बोला, ये एक पेंटिंग यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये आपको जानना ही पड़ेगा। या ये नदी यहाँ से बहती है, वहां से बहती है, आपको जानना ही पड़ेगा। यहाँ कोई आपका लॉजिक नहीं लग सकता है। पर कुछ लॉजिक्स, जैसे मैंने वहां पे जो क्वेश्चन बताए थे आपको 60,000 एंड ऑल ऑफ, वहां पे आपके लॉजिक्स लग सकते हैं, तो वहां पे आपको रिस्क लेना फ्रूटफुल हो सकता है। तो ये चीजें आपको पेपर सॉल्व करके आएंगी कि रिस्क कहाँ लेना है, कहाँ नहीं। वन मोर थिंग, जब आप प्रीवियस ईयर करते हैं तो आपको स्टेटमेंट का समझ आता है कि यूपीएससी कैसे ट्रैप्स में डालते हैं हमें। ठीक है, कहीं कुछ ट्रैप्स होते हैं यूपीएससी के, तो आपको वो स्टेटमेंट समझ आएंगे कभी कभी। जब आप अपना टेस्ट पेपर लगाओगे तो आपको यूपीएससी की लैंग्वेज समझ आएगी वहां पे, कि वो किस लैंग्वेज में पूछता है क्वेश्चन। काफी बार वो प्लेस भी इस तरह से करते हैं। जनरली हम पहले आंसर को समझ लेते हैं सही है, तो वो प्लेस भी उस तरह से करता है कि तुम्हें लगे ये सही है। हम्म। कई बार होता है कि हम इतना ओवर थिंक करते हैं कि हम सही क्वेश्चन को गलत करके दूसरा गलत मार देते हैं। तो वो क्वेश्चंस काफी प्लेस होते हैं इस तरह से, बहुत ही साइकोलॉजिकली प्लेस्ड हैं वो सारे आपके ऑप्शंस। ठीक है, तो आप जितना प्रीवियस ईयर को करोगे उतना आपको साइकोलॉजी समझ आएगी उनके क्वेश्चन को सेट करने की। ठीक है, so we have discussed the objective of prelims, how do we study the sources, how do we attempt the paper, and how educatedly we make guesses, and how we take risks in this paper. Any other thing that you want to ask? नोट मेकिंग और कुछ क्वेश्चन वी विल डिस्कस कल मेंस के सेशन से पहले। ठीक है, एनी अदर थिंग? यस, करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर के लिए मैंने हमेशा डे 1 से आज तक द हिंदू ही पढ़ा। आपका वो इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, हिंदू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने हिंदू पढ़ा। और हिंदू के लिए मैं क्या करती थी कि अगेन, जब आपको अपने सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता है ये चीजें आई हुई हैं, तो हिंदू में आप वही चीजें फोकस करोगे जो आई हुई हैं। कोई मतलब नहीं है ना कि आप पॉलिटिकल न्यूज पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है कि आप किसी एक कवर स्टोरी के अंदर एकदम घुस गए हो। तो हमेशा अपना रडार ऑन रखिए कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ यूज हो सकती है। करेक्ट, इस तरह से आप न्यूज़पेपर पढ़ो। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, एक मैगजीन फॉलो करिए। वो यहाँ की भी हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है, आपको देते होंगे शायद। तो ये मैगजीन फॉलो कर लो, सो दैट कुछ अगर छूट गया आपसे न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम तो वो यहाँ कवर हो जाएगा। यू कैन सप्लीमेंट, बट यू कैन नॉट टोटली रिलाई ऑन एनी अदर मटेरियल। योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी न्यूज़पेपर ऑलवेज। ठीक है, टिल द एंड न्यूज़पेपर इज द की। ठीक, नेक्स्ट। और कुछ डाउट रिगार्डिंग प्रीलिम्स? ऑल क्लियर? ठीक है, so we will meet tomorrow I think, and we will take up mains का। ठीक है, thank you so much.